बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है वो अपना तीसरा हदफ देखते हैं। घर के अफराद, मोहल्लेदारों और हम जमात साथियों को तकलीफ से बचाने की सूरत है। पहली चीज़, घर से आते जाते वक्त घर का दरवाज़ा आहिस्ता बंद करना चाहिए और इसी तरह दरवाजे पर दस्तक और घंटी वगैरह आहिस्ता बजानी चाहिए। दूसरा, स्कूल से घर जाकर जूते, बैग और यूनिफॉर्म मुतय्यन जगह पर रखना चाहिए और इसी तरह स्कूल का काम, होमवर्क करने के बाद कॉपी, किताबें वगैरह दोबारा बैग में डालकर मुनासिब जगह पर रखनी चाहिए। घर में और बाहर तक मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल करके कचरा रास्ते में फेंकने के बजाय कूड़ेदान में डालना चाहिए। रास्तों में खेलने, गलत पार्किंग करने और बैठकें लगाने से बचना चाहिए। पांचवा, बीच रास्ते में थूकना, जोर से डगारना, छींकना, जमाई के वक्त मुंह पर हाथ न रखना और इसी तरह वजू के दौरान दूसरों पर छींटे उड़ाना, तो इन तमाम आदतों से दूसरों को तकलीफ होती है। लिहाजा हमें इन तमाम आदतों से बचना चाहिए। छठा, स्कूल में चीज़ों को जगह पर रखना चाहिए, मसलन पानी का गिलास और जूते वगैरह मुकर्रर जगह पर रखना चाहिए। सातवां, कुतुब खाने की से किताब जितने वक्त के लिए ली जाए तो पढ़कर मुकर्रर वक्त पर वापस करनी चाहिए। आठवां, किसी साथी के से ज़रूरत पड़ने पर कलम, पेंसिल, शॉपर्स वगैरह लिया जाए तो फिर बगैर मांगे वापस कर देना चाहिए। इसी तरह काम करने के लिए कॉपी या किताब ली जाए तो काम मुकम्मल करते ही वापस कर देनी चाहिए। नौवां, कुरान करीम के दौरानिया पीरियड में किसी दूसरे साथी का कायदा या सिपारा नहीं उठाना चाहिए। ब्रेक के दौरान नमाज के लिए जाते वक्त और इसी तरह छुट्टी के वक्त तहजीब और सलीके से अपनी लाइन में किसी को धक्का दिए बगैर इत्मीनान से चलना चाहिए। हाँ भाई, हम देखो इसमें से हम भी किसी न किसी चीज़ मुलविस होंगे, इन्वॉल्व होंगे, तो हमें बचना चाहिए भाई उन सब चीज़ों से जिससे लोगों को ईज़ा पहुंचे। ठीक है, इंशाल्लाह अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। But I hope all of you will be fine and you all will be doing your homework regularly. As you all know, we have finished with the chapter number 5, that was factorization, and today we are starting a new chapter, chapter number 6, that is algebraic sentences. As you remember that I discussed it before, that all these three chapters are linked. All these three chapters belong to a branch known as algebra, right? So that's why I have started 4, then I started 5, and now it's 6, sixth. One of them. So that the main reason is that these three chapters are linked with each other, right? Acha. So firstly, again, as you know, as we start a new chapter, I always start with the introduction of the chapter. Why, what this chapter means, what this topic means. So again, firstly, I would try to explain you all about what are algebraic sentences. In algebraic sentences, there is an equal sign between the two expressions. If you remember, we discussed before about algebraic expressions. What an algebraic expression is, uh, in which variables, which basically it's a combination. Algebraic expression is a combination of variables and constants
combined with the basic combined with the basic operations like addition, subtraction, multiplication, and division. But what algebraic sentences is? Algebraic sentences. In algebraic sentences, there is an equal sign between two expressions. There will be an equal sign between the two expressions. We also call this as algebraic equation because there is an equal sign between the two expressions. Acha, in because we are doing a reduced syllabus, so we will not be doing 6.1, 6.2 as it is not mentioned in the reduced syllabus. So we will directly be going to 6. Exercise 6.3. See here also I have explained in pictures about difference between algebraic sentence and algebraic expression. See, this is alone is an algebraic expression. Algebraic expression. This whole will be an algebraic equation or algebraic sentence, right? In which there is an equal sign between the two expressions. See, algebraic equation always has an equal symbol. Question is, ये तो एक नॉर्मल वैसे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन नहीं आएगा मतलब क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जा रहा लेकिन वो बताने के लिए 5 more than twice a number 5 more than twice a number 5 more than twice a number is 43 is equal to 43. एक और एग्जांपल देख लेते हैं कम हियर to the second image if you see these four are different algebraic expressions. These cannot be solved. These can be simplified. Right? Now see these are four algebraic equations. You see equation equal sign. These can be solved to determine the value of the variable. इनको हम solve कर सकते हैं वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए. Right? अब आ जाए हम एक्सरसाइज पे. अच्छा एक्सरसाइज 6.3 find the solution set of the following equations also verify the answers. Now अच्छा जी तो हम लोग ये 6.3 पे पहला क्वेश्चन है हमारा फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस. ठीक है ऑल्सो वेरीफाई द आंसर्स. अब देखो हमें क्या करना है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है. व्हाट इज मेंट बाय सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बेसिकली द value of the variable x or whatever variable is there in the question. So the value of that variable is basically the solution of the equation, right? So what we will do over here, firstly you can see the two root signs in both the expressions. So you have to remove the two root signs. Root signs will have removed that you take the square root. Now you square them, right? So we have done squaring on both sides, right? In both the sides we have done squaring. ये हमने स्क्वायरिंग कर दी. स्क्वायरिंग करने से दोनों के रूट्स कैंसिल हो गए. यहाँ से हमारे एक्स की वैल्यू आ गई. और मैं कहा था ऑल्सो वेरीफाई द आंसर्स. आंसर डाल के वेरीफाई कर लेते हैं. 4x माइनस एक्स की वैल्यू 12 है. 4x माइनस 4x माइनस 5 is equals to root 3x plus 7. Now how you will verify. अभी आपने आंसर तो निकाल लिया 12. अब आप क्या करोगे आप इस x की जगह पे you will put value of x is equals to 12. सो ये वेरिफिकेशन आपने खुद ने करनी है. देखो इधर यहाँ तक मैंने लिखा हुआ है. अब आप यहाँ x की जगह 12 पुट करोगे, यहाँ भी x की जगह 12 पुट करोगे तो आपको जो है वो इसकी प्राइस
इसकी जो वेरिफिकेशन है वो दोनों दोनों आंसर सेम आ जाएंगे तो इसका मतलब आंसर हमारा सही है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में यू सी आपके थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है। आपको जो है ना यहाँ पे आप एलसीएम लोगे। ठीक है। या एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, आप -2 को वहाँ मूव कर दोगे, ये -2 वहाँ जाके +2 हो गया। 3 + 2 5, √y/3, 3 को हम वहाँ ले गए, यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 5 15। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y में रूट है, रूट हटाने के लिए हमें इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। हमने दोनों जगह पे स्क्वायरिंग कर दी। स्क्वायरिंग की तो ये 15 का स्क्वायर 225 हो गया, तो y की वैल्यू आपका 225 हो गई। अगेन अब आप y की जगह पे 225 वैल्यू पुट की, और आप इसको वेरीफाई करो कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है। -2 को आप मान ले जाओ। ठीक है। और 3 को वहाँ ले जाओ, तो आप चेक कर लो, ये वेरीफाई करके बताओ। ठीक है। ये दोनों वेरिफिकेशन आप अभी करो, और मैं क्वेश्चन से बता रहा हूँ जो आपने भी करने हैं। होमवर्क क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिए हैं, बाकी इसके अलावा अभी कुछ क्वेश्चन करने वो बता रहा हूँ। ठीक है जी। सलाम वालेकुम। इसमें कोई और बात पूछनी हो तो बेटा वो पूछ ले। अच्छा भाई, किसी को कोई इशू बेटा इन क्वेश्चन में? इसमें कोई इशू बेटा किसी को? ये न्यू चैप्टर हमारा तो है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस, इक्वेशंस में हम इसमें काम करेंगे, जिसको एल्जेब्रिक सेंटेंसेस भी कहते हैं। बट अगर कोई बात इसमें ना समझ में आई तो पूछें। जी भाई। लो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये सो रहे हैं क्या? फाज साहब आ गए, फाज साहब भाई, माशाल्लाह। भाई इसका होमवर्क भी है। उमर बाबा इज रेजिंग हिज हैंड, ये तुम बाबा बेटा जी बने बेटा। जी उमर बेटा बने। वेरीफाई करने का आपने कहा था, उसमें क्या करेंगे? देखो बहुत सिंपल है, इसमें जो आंसर आपका आया ना, सोल्यूशन सेट जो आपका आया है, जैसे इस जी क्वेश्चन में 225 आया और इस क्वेश्चन में 12 आया ना, तो आप इस जी वैल्यू जी। को पुट कर दो वेरिएबल में। जैसे मैं अगर इधर पुट करता हूँ 4, तो 4 12 का क्या होगा? 4 12 48। 48 - 5। तो सर 43 बन रहा है। सही है। अब राइट पे आ जाओ, राइट पे। 3 12 जी। 3 12। 3 12। मैं देखता हूँ। अरे 3 12 यार, क्या हुआ? 12 3, अच्छा। 36। 36 + 7। 43। समझ में आ गई? तो लेफ्ट हैंड साइड और जी राइट हैंड साइड पे सेम चीज आएगी। सेम जी चीज। सर, दूसरे वाले का तो हो गया था, 4 वाले का। इसका मैं पूछ रहा था, सही। सेम सेम सेम। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसके में देखो, 1 मिनट में होमवर्क क्वेश्चन बता रहा हूँ, 1 मिनट, 1 मिनट। 5 6 9 10।
जी फहद बेटा। सर इसमें अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर, अस्सलाम। इधर और भी तो होता है। जी बेटा क्या कह रहे हैं? एक मिनट रुके, एक मिनट रुके। एक्स की वैल्यू सर दो दफा निकालनी होती है ना, आइदर और करके, एक दफा माइनस में, एक दफा प्लस में। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। सर मैंने तो जो करा है उसमें तो यही है। नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ ये आप जो कह रहे हैं, समझ गया, आप ये कह रहे हैं कि आपका वो जो एक दफा सर प्लस करके करते हैं, एक दफा माइनस करके। एक मिनट हाँ। नहीं बेटा जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। आप इसमें एक ही वैल्यू रखिए। जैसे हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन सेट 12 है ना, तो हम वो जब है जब आप एक रूट वाले की वैल्यू निकाल लो ना। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जी एक ने वेरिएबल एक्स की वैल्यू निकालनी थी, हमने एक्स की वैल्यू निकाली और उसको पुट कर दिया। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू -12 कैसे होगी यहाँ पे? शायद दूसरी वाली एक्सरसाइज में, आगे हाँ वो वाली मैं दूसरा हो। एक्सरसाइज में मेरे अच्छा ख्याल। ये होमवर्क क्वेश्चन इधर लिखे हुए बेटा, ये होमवर्क क्वेश्चन मार्क कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 6 9 10 ये करने हैं सबने। 5 6 9 10 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ओके 6 सर। 9 एंड 10 ये होमवर्क है आपका। अच्छा क्या नाम है? फहद। 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 हेलो। फहद वो बेटा एक्सरसाइज 6.4 है। यू दावर बेटा देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आप पूछ रहे हैं ना, तो लेके जाने की जरूरत ही नहीं है। देखो हमें प्रूफ ये करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट? तो हमने दोनों को इक्वल करके प्रूफ कर दिया कि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। इस पे लेके जाने की जरूरत नहीं है। सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें -2 को वहाँ लेके जाएंगे, 3 को वहाँ लेके जाएंगे और फिर प्रूफ करेंगे। सही है। बस चलो गुड। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है।